Okay. Chairman, I think we should start. People can keep joining in. Okay. So, good afternoon, everyone. Welcome, Pramodji, to this webinar that GJPC is organized. We are happy and honored to have you on this session. We also have K. Srinivasan, who's our convener for the gold jewelry panel. I'll just quickly give a backdrop and introduction of the gold industry in India. So, coming. So, one is that, I must say this, that it's definitely a golden page. I would say that we're turning over a new leaf in our industry, and I just thought that this small mini video was very apt. That after centuries and centuries of gold being sold in this country, finally, I guess 16 June was a historic, I guess, turn of events as far as our industry goes. Now, to quote Piyush ji, and I guess in all the meetings that we've had with him, the goal was very clear that it's consumer interest, and the consumer interest must be protected at at all avenues, and whatever kind of business is conducted in India should be in the most ethical, world class, and in a way in which the consumer interest, I would say, is protected. So, sir, over here, we just wanted to quickly take you through, the export journey. So, our exports used to be $4 billion. They went up to 8, and now in this pandemic year, they've dropped down to 2. The potential of this business out of India is $33 billion. So, there's a huge potential for gold exports out of India, and we're not even tip of the iceberg. We are the fifth largest exporter out of in the world. UAE is our largest customer base. 82% of our exports go to the Gulf region, 9% go to Hong Kong, and then there is another 9% which goes to various other countries. But obviously, the huge potential for our industry is gold jewelry to practically every country there is out there. The reason why I'm, sir, saying this is that hallmarking, due to the efforts of, I would say, several bodies globally, and especially with ethical sourcing, chain of custody, all these phenomena becoming a reality in pandemic, hallmarking is here to stay, and it's only getting and spreading larger and larger in many countries in the world. Of course, the standards vary. There is depending on each country, but it is very much prevalent in many countries all over the world. Having said that, this, sir, will give you an idea of the consumption which happens globally. So India used to be 24% of the world's gold consumption, in tons, and we're down to now 20%. A little under 20% of the world's consumption of gold. So the gold global jewelry business is over $100 billion. It's a huge industry. 27% is India's contribution to the global jewelry consumption. 13% is our share in India's merchandise exports, where
and since I guess you've been spearheading this journey, we have a little under 1,000 hallmarking centers today. We have 4 lakh jewelers. So, we have an incredible number of jewelers in our country, and hence even the challenges which we'll talk about today. And out of that, only 36,000, like sir, have been registered. And the journey is how do we get the whole ecosystem registered as soon as possible. So sir, over here, just quickly, I guess we've already gone through this. We've had several committee meetings, and I guess a lot of progress did get made. Implementation, like we all agreed, would be in a phased manner. We'll start with 256 hallmarking districts. Exemption for exports. There's been other kind of exemptions, Kundan, Polki, Jadao, charges you agreed very graciously to waive off, you and the minister. Logo marking system is in place, and it will be a tech-based, basically registration process. So all in all, this should help in making, I guess, this whole journey as painless as possible for the government, industry, consumer, all stakeholders possible. Sir, we had given you a proposal, and we'll discuss it offline, but I just thought we'll take this opportunity that since one of the challenges is hallmarking centers, and we do have this common facility center scheme under the Commerce Ministry, whether there is a chance to do this together. We work with local associations, we partner together, and we try and set up as many hallmarking centers as possible across the country. And we can make it broad based. The question is having a CFC kind of scheme even for hallmarking centers. So we'll take it up on another day, but just wanted to leave this thought with you in your mind. We have all kinds of challenges, and we'll go into it in detail, but some are where we require some more clarity, which is maybe not in the act. HUID, like we've discussed, is a challenge, and we'd like to, I guess, and the trade also wants to know, I guess, many aspects of this HUID. And then there are all the operational issues, which we'll take today to discuss. So just to give a quick introduction to all the viewers who haven't had the chance to, meet Pramodji. So Pramodji is our Director General of the BIS, the Bureau of Indian Standards. He is a 91 batch IS officer from the Assam Meghalaya cadre. He has had a long and varied experience ranging from grassroots program implementation, and that's why maybe, sir, you're the perfect man for this project, to macro level policy work at provincial and national levels. He has served several sectors, including education, social welfare, human resources, revenue, finance, disaster management, food and public distribution. And Mr. Tiwari has served the nation in various capacities: Joint Secretary of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Principal Secretary Implementation, Commissioner cum Secretary in Revenue and Disaster Management, the Government of Assam, Joint Secretary Admin Reforms and Public Grievances in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Director, Ministry of Human Resources, and a Commissioner in the Government of Assam. So, sir, all in all, I guess you had a very checkered career over various government departments. And on a lighter note, he's also written 3 fiction novels, like he just told us a few minutes back. So, very experienced man, happy to have you. And we are hopeful that we'll have a very fruitful session today for our members. So, having said that, sir, and before we, I guess, just to jump into our, I guess, session. So can you, and KS, I'll come to you also for this question. And so it's for both our speakers today. One is, can you give us a brief insight, into what hallmarking means for you from the government point of view, positive, negative, and then KS, we'll come to you on what hallmarking you think means for our industry, positive, negative, in the short and long term. Would request both of you all keep the answers brief. We have more than 25 questions, and then I want to open it up to the audience. So, sir, over to you, Pramodji. Okay. Good afternoon, Mr. Shah, Mr. Srinivas, and all those who have joined the webinar today. It's a very important topic, and I must thank GJEPC for organizing this discussion, because we need to discuss the issues which are likely to come up in the way of smooth and seamless and painless implementation of mandatory hallmarking. Hallmarking as such, has been in our country since 2000, and in 2007 itself, the
it was government decided that it should be made mandatory. And in fact, in 2008, there was a government order also that it should be made mandatory. But then we had to wait for 10, 12 more years before this could become a reality. And now we have 256 districts where it has become mandatory. And the criteria why these 256 districts were chosen was because they have at least one saying and hallmarking center, because in our discussions, Honorable Minister had constituted a high-level committee, and one of the issues that came up and almost everybody raised was that small jewelers or jewelers in general should not have difficulty in accessing hallmarking centers. The jewelry is a costly item, and if long distances are to be covered on a regular basis, there are risks involved. So taking that into account, it was decided that we will start with 256 districts, see and utilize the time available with us to see how more and more hallmarking centers can be set up in the uncovered districts, and then some other strategies also which can help improve the access scenario. Because I would like to share with you, there are many states, smaller states in particular, hill states and northeastern states, Andaman, Ladakh, Lakshadweep, etc., where despite our best efforts, we may not be able to set up assaying and hallmarking centers. Given the small number of jewelers and the volume of jewelry that will be there to be hallmarked. So we will have to come up with some strategy, and we are working on that. As far as uncovered districts are concerned, we have already discussed the contours of the strategy that we have in our mind. Maybe this week, only, if not this week, next week, we will be announcing a very, very generous subsidy scheme to set up ASC assaying centers or even offsite centers of the existing hallmarking centers. We are thinking in terms of subsidy to the tune of 75%, 75%, and also other kinds of relaxation in the royalty that centers pay to BIS, so that even if the volume is not that big, the centers can function and can be sustainable. Hallmarking is a great idea, I tell you, because when gold is something for a middle class, lower middle class family, or even upper middle class family, I would say, it's a once in a, if it's not once in a lifetime investment, we don't purchase gold very frequently, and whenever we do it, those are the occasions which are very important for a family or for a human being, marriage or other important kind of social occasions. In fact, in our area, since I come from, I have an agrarian background, people sell their land to purchase jewelry, to give gold or jewelry to their daughters and all that. So it's so important for a common man. The idea that we should ensure the quality of the gold that people purchase is a great idea. Now, as far as a few things I would like to share, and I have gone through the questions which were sent to me. One is that whatever concerns were raised during the discussions we had 3 meetings of the high-level committee, and after that also we have had quite a few meetings. All those concerns we have tried to address. One is, one by one, as I can think of. One is the technology itself, because the entire workflow of the assaying centers will be now automated. Why we thought of doing it is the question. See, whether hallmarking is mandatory or voluntary, what is of paramount importance is that it has credibility. Hallmark jewelry has credibility. The
incidents of fake hallmarking or somebody doing hallmarking without following due process of assaying and examination, this must stop. So the main purpose, the chief purpose of having the automating the workflow of the assaying centers right from receipt of jewelry items to the delivery of jewelry items is to ensure the credibility of the hallmark jewelry. We must be sure, the customers must be sure that if a jewelry is hallmarked, it's correct piece or it's right piece of jewelry that I'm purchasing. So the main purpose of automation is this. Now, a related question is about HUID. We changed the hallmark design. And now, as was shown in the slide, it will have BIS log, the purity mark, and the 6-digit code. This code, I believe, has been misinterpreted in a way. Again, the purpose of the code is that we will have complete record whether a jewelry piece that arrived at an assaying center was hallmarked following due process or not. By using that HUID code, when we go for the audit of the assaying center, when we go for the surprise inspections or periodic inspections of the audit centers, we will have this data that this particular center received 1,000 pieces of jewelry and whether they went through the entire process of fire assaying or not. So this is the main purpose. When we floated the idea of using it at the level of jewelers, the purpose was again very limited. That a jewelry, when it is manufactured and sold, it moves from one person to another person, one agency to another agency, from manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, or to a big brand. Brand will send it to chain outlets. So this movement, if HUID jewelers can put this HUID, then this movement will be can also be tracked and it will be useful for the jewelers. Because otherwise also, suppose during market surveillance, a piece of jewelry is taken by our officers. They get it assayed and found that there is some problem with the purity. Now, Act is very clear that if you have to seek explanation, if you have to take any action, who is the person you will be talking to? The person who got it hallmarked. The retailer may not be that person. That person may be someone else, the manufacturer. So if this track is there, then jewelers need not worry. We will know that for this particular piece of jewelry, Mr. A is the person who got it hallmarked. So we will be talking to him. So that was the limited purpose. And a later idea was that if on mobile app, we can also put the information that if a customer can put that 6-digit code, he will have the details of the jewelry, like the person who got it hallmarked, the person who is selling the jewelry, the center where it was hallmarked, and the purity. But since there were many issues with the this aspect at jeweler level HUID, so we have taken a conscious decision that it won't be done right now. Only after we have discussed, everybody is confident, everybody is assured that yes, it's a good thing to do, then only we will go for it. Right now, it will only be at the center level. And that will help us keep track of the activities of the assaying and hallmarking centers. So would I be correct to say, sir, that in the long term, the purpose is to track the jewelry? In the short term, tracking is not an issue. No, the tracking means the movement from manufacturer to the retailer, to the customer. That's all. That's all. That was the purpose. एक और request थी हमारे audience है कि थोड़ा if we can mix English and Hindi together. अच्छा, okay, मैं करूँगा, ठीक.
और अब ये हो गई बात हमारी, ये जो एक मेन कंसर्न। दूसरा कंसर्न जो एक ज्वेलर के लेवल पे दो तीन बातें कही गई कि ये बिजनेस का नेचर ऐसा है कि शॉप फ्लोर लेवल पे बहुत सी बातें होती हैं, जैसे ज्वेलरी वाज सोल्ड, 10% केम टू रिटर्न, सो दिस रिटर्न ज्वेलरी, इसका भी हमारे सिस्टम में हिसाब होता है। कभी कभी ज्वेलरी हमारी अनसोल्ड रह जाती है, उसको हम मेल्ट करके नई ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको भी जब तक टेक्नोलॉजी में जब तक उसके सही आंसर नहीं होते तब तक हमें नहीं लागू करना चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, we have already done it. The technology as such has been, now improvements have been made, and all these things will be taken up for return jewelry and sold jewelry. वो कैसे उसको HUID को डिसेबल करना है, but right now we will discuss it when we decide to when we come to the implement HUID. at the jeweler level. Since we are not doing that, let's not discuss that. No, So plus, sir, we'll come to the HUID part. At that time, we'll yes. discuss it in detail. एक Okay, दो so over चीजें, to you, Srinivasan. yeah, What Yes, is sir. Yes, correct. your, I guess, Sir, as a perspective from the manufacturer retail side of India on hallmarking? Your opening remarks. see, as a industry, gem and jewelry industry, all the stakeholders know welcome this hallmarking. There is no doubt at all. Actually, no, one more thing is definitely customer going to get quality jewelry, right purity jewelry they are going to do. That also there is no doubt. Initially, no, actually, no, at the time of implementing, there is actually no some resistance in the industry. They are having a lot of doubts. That is the only concern. Actually, no, see, we thought actually, no, first, no, compulsory mandatory hallmarking, then HUID. But what happens, HUID, mandatory hallmarking, both together government introduced, but the industry, actually, no, industry stakeholders, they don't have that much education and they are facing a lot of problem. That's the one thing I want to highlight. Otherwise, no, everything is okay. So, Srinivasan, again, coming to you only, and since you're one of the largest manufacturers in the country, what do you think, and you've been in the gold business, all your life, consumer को क्या benefit रहेगा ये hallmarking से? सर ये एक्चुअली क्या क्वालिटी मिलता है ना सर, अभी जो क्वालिटी अपन बोलता है पहले एक्चुअली क्या 20 कैरेट बोलता है, 19 कैरेट भी देता होगा। अभी 20 कैरेट बोलो तो 20 कैरेट मिल जाएगा, 23 बोलो तो 23 मिल जाएगा, 22 बोलो तो 22 मिल जाएगा, 18 बोलो तो 18 मिल जाएगा। कंज्यूमर के लिए एक्चुअली क्या वैल्यू फॉर मनी होएगा, इसमें नो डाउट है, ये बहुत अच्छा है। Okay. So, over to you again, Pramod ji, and coming to the consumer part. So, we all agree there is a huge benefit to the consumer. They will, जो जिसका वो पैसा देगा वो उसको मिलेगा, और right from investment point of view also उनका sentiment improve होगा। अब एक जो सवाल था is from the consumer point of view कि अगर उसने कुछ लिया और से बराबर नहीं है, ओके, सो लीगल रिकॉर्स क्या रहेगा कंज्यूमर के पास? ये एक सवाल है एक्चुअली फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स ओनली कि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज रहेगी, उसको लॉयर वगैरह के पास जाना पड़ेगा कि उसके पास क्या लीगल रिकॉर्स रहेगा? नहीं, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, दो चीजें हैं जो सबकी जानकारी में आ जानी चाहिए। एक तो हमारा एक अपना ऐप है, BIS केयर ऐप, वो किसी भी एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड किया जा सकता है। वहां पे रजिस्टर कंप्लेंट का एक प्रोविजन है। वहां सिंपली जाके अपना कंप्लेंट बता दें, हमने ये ज्वेलरी, इनसे जो भी डिटेल्स, मिनिमम डिटेल्स है वो डाल दें। दूसरा है हमारा कंज्यूमर कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल है, ये BIS में। आप जो www.manakonline.in, वहां जाके भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसे भी मैनुअली भी भेज सकते हैं। इसमें जो कस्टमर है उसको बहुत परेशानी नहीं है। आपने जब एक बार हमें बता दिया कि हमने ये ज्वेलरी खरीदी, गलती हुई, तो हम उसको BIS उसके लिए कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि हम जाएंगे वहां पे जहां से भी कंप्लेंट है, उनके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसकी हमारी जो BIS की अपनी रेफरल असेइंग लैब्स जो हम कहते हैं, वहां उनकी प्योरिटी की जांच करा लेंगे। और अगर लगेगा कि हाँ, जो
कंप्लेंट ने कहा अगर वो सच है तो फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया है, बल्कि अच्छा है मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि अगर 40 पीपीटी से ज्यादा का डिफरेंस होता है तब जाके उनके अगेंस्ट में वो कैंसिलेशन की नोटिस जाती है कि भैया आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। अदरवाइज अगर मामूली कोई डिफरेंस होता है तो फिर उनको एक नोटिस दी जाती है कि आप ऐसा पाया गया, आप इसको करेक्ट कर लें। तो एक तरह से, और ये 2 बार उनको मौके दिए जाते हैं हर ज्वेलर को कि आपके यहाँ ये प्योरिटी में गलती पाई गई, आप इसको ठीक कर लें। ये तो हो गया हमारे और ज्वेलर के बीच में। जो कंज्यूमर हैं उनको हम कंसर्न ज्वेलर को ये नोटिस देते हैं कि आपकी प्योरिटी चेक कराई गई, उसमें डिफरेंस पाया गया रेफरल सही में, तो आपको इसके कंपनसेट आपको उनको करना पड़ेगा और दैट विल बी, जो गैप हुआ उसका डबल कॉस्ट के बराबर करना पड़ेगा, जो भी प्योरिटी में गैप हुआ। तो ये प्रक्रिया, इसमें बहुत ज्यादा कोर्ट का मामला नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और कस्टमर को बस अवेयर रहना है और हमें बताना है कि यहाँ पे हमारे साथ प्रमोद जी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रोसेस इजी रहेगा, ये इजी रहेगा, इसमें प्रॉब्लम आया तो इजी रहेगा, और जो रिटेलर है उसको भी आप 2 चांस दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जो बिल्कुल ही कम प्योरिटी में फर्क होता है उसमें तो उनको बस एक केवल एडवाइजरी जाती है, एक एडवाइजरी जाती है कि आपके यहाँ ऐसा पाया गया, ये कमी है, आप इसको ठीक करा लें, आगे से आप सावधान रहें। सो फर्दर टू दैट, एक कंज्यूमर सेंट्रिक की एक दूसरा तीसरा सवाल था एक्चुअली, इज अपने जो 16 जून की जो प्रेस रिलीज थी उसमें वी हैड अग्रीड कि देयर विल बी 20, 23 एंड 24 कैरेट वुड बी अलाउड, बट जो अमेंडमेंट्स आए उसमें 14, 18 और 22 ही है, thus परमिटिंग डीलिंग्स इन अदर ग्रेड्स विदाउट हॉलमार्किंग। जैसे अपना डिस्कशन भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में 20, 23 और 24 का एक रिक्वायरमेंट है। आज बुलियन जो बिस्किट बेचे जाते हैं वो 24 में ही लगभग जाते हैं। सो ये रेलेवेंट स्टैंडर्ड अमेंड होने वाले हैं। हाँ, लेट मी शेयर द गुड न्यूज। स्टैंडर्ड अमेंड हो गया और ये जो 3 कैरेट थे वो उसमें इंक्लूड भी हो गए। एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको गजट में हम नोटिफाई करते हैं, तो वो गजट नोटिफिकेशन के लिए चला गया है। मुझे लगता है कल या परसों गजट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। एक बार गजट नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर वॉलंटरी बेसिस पे, तो इन ग्रेड्स में भी अगर कोई हॉलमार्क कराना चाहें तो वो करा लेंगे। मैंडेटरी करने के पहले हम लोग एक बार फिर डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट के भी साथ कि ज्वेलर्स को काफी समय मिलना चाहिए ताकि वो पुराने स्टॉक अपने ऑफलोड कर पाए। तो कब से ये नए ग्रेड मैंडेटरी होंगे वो हम बाद में तय कर लेंगे, बट फिलहाल ये अगले महीने से हॉलमार्क करा पाए। तो ये वीक हो जाना चाहिए। तो कंज्यूमर के लिए ऑल इन ऑल ऐसे अच्छी खबरें हैं आप दे रहे हो आज। बिल्कुल। सो अभी आते हैं एक्सपोर्ट पे। सो एक्सपोर्ट में जैसे अपना डिस्कशन पहले भी हुआ था कि सी हर आर्टिकल meant for export purposes must be accompanied with a copy of the export order. Okay. Now जैसे डिस्कशन अपना हुआ था कि एक्सपोर्ट ऑर्डर तो होते नहीं है, आज इन्वेंट्री बना रहे हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर, और फिर अगर ये मैंडेटरी कंडीशन हो गई बट एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है अपना नोटिफिकेशन के हिसाब से। एंड श्रीनिवासन, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल फर्दर फॉर सर? No, I think you are clear. You can go ahead. Okay. So, sir, over here, what would be the, and maybe, okay, Srinivasan, we'll take दोनों सवाल ऐसे साथ में लेते हैं। एक है कि अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर है नहीं बट एक्सपोर्ट करना है, सो वी आर बिल्डिंग स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपोर्ट। और दूसरा है कि हमारे वैल्यू चेन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। सो जब एग्जेम्प्ट है तो ये सारी वैल्यू चेन में एग्जेम्प्ट है, स्टेज वाइज रहेगा, कैसे रहेगा? सो यस, दिस इज हमारे साथ हमारे डीडीजीज भी हैं, वो भी दे कैन थ्रो सम लाइट। इसमें ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मिस्टर दुग्गल के भी आए थे, उनके साथ भी बातचीत हुई थी कि 2 तरह के लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आप बेहतर जानते हैं आप तो। एक तो जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज जो बिल्कुल एक्सपोर्ट ही करते हैं,
और दूसरे दूसरे ज्वेलर्स भी हैं जो थोड़ा बहुत अपनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब प्रश्न ये रहा कि अगर हम इनको कहते हैं कि ये हॉलमार्क जरूरी नहीं है, तो वो उस स्टॉक का रिकॉर्ड कैसे रखें? तो कैसे पता चले, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि ये एक्सपोर्ट का स्टॉक है और ये हमारे सेल के लिए स्टॉक है? तो उसमें मैंने ये तय किया, फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस पे एक्सपोर्ट ऑर्डर वाली बात हम लोगों के दिमाग में थी, चूंकि लगा कि अगर वो दिखाते हैं तो काफी है, वी विल गो बाय इफ दे हैव एनी ऑर्डर। बट बाद में जैसा आप लोगों ने मुझे बताया कि बहुत मामलों में एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं होते। तो मिस्टर शाह, व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट इसको ऑफ द कफ कुछ भी कहने की बजाय, इट्स ये एक्ट और रेगुलेशन का मैटर नहीं है, इट्स जस्ट ए क्वेश्चन है हैविंग ए गुड एसओपी इन प्लेस, दैट कि एक्सपोर्टर्स और बीआईएस के ऑफिसर्स और चाहे जो भी इस वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में है, मैन्युफैक्चर, सभी को क्लैरिटी रहे कि करना क्या है। तो वो हम लोग जब एडवाइजरी कमिटी जो बन गई, जब हम बैठेंगे और उसमें एक्सपोर्ट के भी तो आप तो ही हैं, जेजीईपीसी भी है उसमें, तो हम लोग जब बैठेंगे तो उसको वी विल वर्क आउट कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू एंश्योर कि एक्सपोर्ट करने के नाम पे कोई धोखा भी नहीं करे और कोई मैल प्रैक्टिसेस भी नहीं हो, और जो जेन्युइन हमारे एक्सपोर्ट की कमोडिटी है उसमें भी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए। तो आई होप कि व्हेन वी सिट टुगेदर एंड गो इनटू द डेप्थ ऑफ द इशू, we will be able to come out with a good SOP. Okay. So will we take even storing of gold jewelry जो बना है at that point only, जो storage का? Obviously, because as far as Act is concerned, storing of jewelry is also prohibited. अब उसमें जो एक सवाल, अब इसको हम लोग इंटरनली डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। अब कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे ही आपके यहाँ कोई चीज स्टोर में आई, कोई बीआईएस वाला आके पकड़ लेगा, कहेगा कि ये तो आपने गलत किया है। ऐसा इन एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस you have to build some inventory for some time before it becomes part of the manufacturing process. तो वो तो हमारे प्रोडक्ट सिस्टम में भी अंडरस्टैंडिंग है, बट इशू ये है कि उसको हाउ टू फ्रेम अ वेरी क्लियर कट गाइडलाइन कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने जानबूझकर एडवाइजरी कमेटी के लिए रखी थी, सो दैट वी फ्रेम गाइडलाइंस ओनली आफ्टर लिसनिंग टू एवरीबॉडी, एक ट्रेड का भी सबका पर्सपेक्टिव लेकर कि बाद में कोई असुविधा ना हो। We will do that. Is there anything you would like to clarify on storing from your point of view? डीजी सर, एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्री क्या सोच पूछता है अभी, एक्चुअली क्या सर, मैन्युफैक्चर ने माल बनाया, अगर उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का होगा, एक्सपोर्ट पार्टी आया, उसको दे दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, उसका हॉलमार्किंग नहीं किया, चलेगा। अभी एक्चुअली क्या, कोई होलसेलर है, उसका एक्सपोर्ट कुछ ऑर्डर है, वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास आके कुछ खरीदी करता है। मैन्युफैक्चरर को तो ये मालूम नहीं है कि वो एक्सपोर्ट बोल के लिया, वो एक्सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो तो मालूम नहीं है। अभी इसमें ऐसा होगा तो जिम्मेदारी किसका होगा? अभी करेक्ट मिस्टर श्रीनिवास, मैं वही कह रहा था, दैट इज व्हाई वी नीड टू सिट टुगेदर एडवाइजरी कमिटी में। और अभी मैं इसलिए ऑफ द कफ कुछ नहीं बोल रहा था, बट जैसा आपने एक सिचुएशन ये बताई कि सम होलसेलर कम्स आस्क्स यू दैट ये मुझे इतने पीसे चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, तो मे बी द फैक्ट दैट he has sent a written requisition to you, उसने आपको एक लिखित रिक्विजिशन भेजा है that I need this quantity of jewelry for export, that should be a good enough evidence कि इसमें मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं है, ये होलसेलर ने कहा। लेकिन इन चीजों को हम एक बार बैठ करके ठीक से गाइडलाइन की तरफ फ्रेम कर लेंगे, so that everybody is interested. So sir, challenges in export is एक तो कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, वैल्यू चेन का कैसे करेंगे, और तीसरा जो है वो स्टोरिंग का है। बिल्कुल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं अपने एग्जीबिशन पे। अभी हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो है वो एग्जीबिशन डोमेस्टिक के लिए भी बनाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी बनाते हैं। अब जब एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रहे हैं तब तो उनको मालूम नहीं है कि कौन सा रिटेलर लेगा, क्या लेगा, वो ऑर्डर भी ले सकता है और नहीं तो जैसे माल है वैसे भी बिक सकता है। ओके, सो वो स्टेज पे उसको हॉलमार्किंग करना है कि नहीं करना?
हम लोगों ने दो चीजें बहुत क्लियरली कही हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है, उसमें जो एक्सपोर्ट्स और री इम्पोर्ट है, उसका मतलब जो मैं समझ पाया हूं कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया बट पार्ट ऑफ दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पार्टी देयर, इंपोर्ट, तो उसको फिर से वापस लाना है, तो दैट ज्वेलरी विल बी एग्जेम्प्ट। अब इसके भी हमें थोड़े क्लियर कट गाइडलाइन बनाने हैं। और दूसरा, अगर फॉरेन एग्जीबिशंस में हम जा रहे हैं तो फिर उस ज्वेलरी को हमें नहीं करना है। जो डोमेस्टिक सेक्टर में एग्जीबिशंस हैं, अगर वहां सेल नहीं होता है, इट्स ओनली B2B, बिजनेस टू बिजनेस, तो वो एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, वो exempted है। वो एग्जेम्प्टेड है, B2B। B2B है तो exempt है। हाँ, बट सेल होगा तो देन इट्स नॉट एग्जेम्प्ट। हाँ, जब सेल करते हैं तो जब वो माल बना के रेडी रख रहा है, हाँ right? हाँ, तब उसको हॉलमार्किंग नहीं करना है। जब नहीं सेल करना। किया तो हाँ, वो तो कस्टमर उसको बोलेगा। हाँ, और बिल्कुल। केस यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन ओवर? सर, इसमें आपने लिखा है सर, एक्चुअली गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्जीबिशंस करके। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट? ये एनी थोड़ा गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, बट मतलब अगर कोई भी सिटी में लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेके अगर एग्जीबिशन किया, उधर सेल नहीं होगा, खाली डिस्प्ले है, उसके लिए कुछ हॉलमार्क का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके, इट हैज टू बी ए गवर्नमेंट एजेंसी, दैट्स ऑल। ये हमारी लिमिटेड। फिर दूसरा एक हमारे छोटे ज्वेलर्स का एक सवाल था, दैट जो अनरजिस्टर्ड छोटे ज्वेलर है जो 40 लाख के नीचे, वो आर exempt, but they are in these 256 notified districts. Will they be permitted to trade in hallmark jewelry when they are not involved in manufacture और खुद नहीं करा रहे? नहीं, उनको मैंने ये कहा, इसीलिए अगर काफी बड़े लोग संख्या आपके साथ है, मैं ये क्लैरिफाई करूं, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आप अगर 40 लाख से नीचे का टर्नओवर आपका है और आप हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल फ्री हो गई है और ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, बस अपने बारे में थोड़ी जो जरूरी सूचना, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, बस इतनी सूचना आपको डालनी है, सबमिट करना है, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहें, कृपया रजिस्टर करा लें। और मैं एक पॉजिटिव न्यूज आपके साथ शेयर करूं कि जब से हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन फ्री किया है, काफी तेजी से ज्वेलर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये जो संख्या 36,000 थी, वो बढ़ के 40,000 से ज्यादा हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और लोग काफी ज्वाइन कर लेंगे। गुड न्यूज। सर, इसका मतलब है कि अगर 40 लाख के नीचे जो भी है, उसका हॉलमार्किंग रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। वो दूसरा कुछ भी माल बेचा तो, अगर हॉलमार्किंग का माल बेचने का होगा तो 40 लाख के नीचे होगा तो भी उसको रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। राइट सर? जी, करेक्ट, राइट। ओके, फिर हमारे बहुत सारी ज्वेलरी सर, और आपने देखा ही होगा होर्डिंग्स में दिल्ली में, कि आप किधर भी देखोगे तो वो 2 टोन होती है। तो प्लैटिनम के साथ पिंक गोल्ड है, कि गोल्ड सिल्वर के साथ थोड़ा गोल्ड है। तो जहाँ गोल्ड का कंपोनेंट से थोड़ा है और दूसरा मेटल ज्यादा है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर, तो वो ज्वेलरी को हॉलमार्किंग करने की जरूरत है कि नहीं? नेक्स्ट, अभी मिस्टर पसरीचा है। Gold का content can be hallmark. Even silver can be hallmark. Yeah. But as a composite piece of jewelry, we won't hallmark. Only the gold content of that we will hallmark. Yeah. सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली के ये आप जो बोल रहे सही है सर। अच्छा, ये मिस्टर श्रीनिवासन, is it different from जड़ाऊ? No, this is something different, sir. Yes, you are right, sir. Sir, what is I will explain, sir. Actually, no, sir, nowadays, no, so platinum jewelry coming with 18 karat gold also. Maybe 70% or 60% thing will be platinum. 30-40% will be the gold. Actually, no, it's a combination of red gold and white, something like that. So in this case, actually, no, suppose one necklace is 40 gram. Out of 40 gram, 10 grams is gold of 18 karat. How to hallmark? That's the first question number one. Second, no, sir.
Actually, when we are approaching to the hallmarking center, they are saying we don't have a set procedure for this dual metal. Please explain. Okay. I have noted down. Yeah. Maybe they do not have clarity. We will get back very soon. Okay. So, sir, I'll keep this point as pending. You will come back. Huh? Yeah. Sir, until that, sir, this business, sir, going on for years together. Until getting a reply from the BIS, can we continue this business, sir? This platinum with gold, can we continue? Yes. Why not? Yeah, Okay. please. It is continued. And another question was on white gold. Yes, on white gold also. This is mixed and white. So white, there is no problem. It is covered under the hallmarking order. So it should be hallmarked. And all the hallmarking centers know how to do it. They have been doing it in many places. It's not very common, but in some places they have been doing it. So, Excuse me, sir. Sir, actually, no, we have actually asked a hallmarking center. They said actually no, they don't have a sampling procedure for this white gold. That's what I heard, sir. I heard. From the okay. Though I collected, in fact, after getting your questionnaire, I collected information from regional offices, and particularly they said that no, it's happening. But what we will do is that we are already conducting. You must have heard we are conducting training programs for physical training programs for all these hallmarking centers. Today, it's happening in Mumbai, Ahmedabad, and Delhi, Noida. So we will include this aspect so that they have optimum clarity about it. It's permitted. Sampling procedure is already there. Fire assaying procedure is already there. Everything is defined. Maybe most of them have not been doing it, so they have forgotten. We'll ensure that. To clarify, sir, Pramodji, so the thing is that white gold has to be hallmarked. Yes. Okay, and the hallmarking centers will be equipped to have the samples and whatever, right? Okay, and platinum, you will revert back. Yeah, we will have to examine it. Okay, sir, then on this, I mean, it's a follow-up, I guess, to this, whether the mark of the brand owner be embossed on the jewelry. So ये manufacturer बना रहा है jewelry को, but retailer का mark रहता है. So can the manufacturer also emboss his logo with the? That I clarified. In fact, in the presence of Honorable Minister also even there, it was raised. This is between the manufacturer and a retailer. Manufacturer and retailer. Yeah. Our requirement is that hallmark should be there. Okay. Beyond hallmark, what mark if they want to write their own brand name, etc. I mean, it's for them to decide. Okay. KS, you had something to say. You had a clarification. It's our understanding. Over and above this hallmarking, actually, no, manufacturer also can mark his logo, and the retailer also can mark his logo. Am I right, sir? We have no issue. We have no problem. Okay, sir. Okay. So both can be there, manufacturer and retailer. Okay. Sir, then whether the unhallmark stock, जो अभी आज है stores में, will it have to be hallmark after obtaining registration? एक बार registration लेने के बाद जो भी unhallmark stock है वो hallmark कराना पड़ेगा कि वो चलेगा ऐसे ही बेचा? Because नहीं अब तो mandatory हो गया तो अब वो नहीं बिक सकता into 56 districts. आपका दूसरा question भी मैं answer कर दूं, which was just below that, about already hallmark jewelry. हाँ. जो पुराने hallmark है. हाँ. Let me clarify that there is absolutely no problem. That jewelry will be sold and it will be treated as hallmark jewelry. Only thing is that we will ask the jewelers, the registered jewelers who were registered before the new system came into force, to have a self-declaration ready with them that this is the quantity of hallmark jewelry that I have, so that we know that there has to be a sunset period. For this. So, yeah. So the old hallmark jewelry has to be hallmark. Yes. जितना भी jewelry है. Okay. Sir, then एक clarification अभी sizing पे था कि जो point of sale पे size करना पड़ता है, necklace size करना पड़ता है, ring size होती है, छोटा किया, बड़ा किया, 2 link निकाल दिए. तो आपने एक जो माना था वो है कि plus minus 2 ग्राम कर सकता है. 2 grams, yes. Okay. So weight change होगा. आज
और हाँ, अगर 2 एक ग्राम। बार आपका जो कंज्यूमर जाएगा वो देखेगा 10 ग्राम है, मगर एक्चुअली 10 नहीं रहेगा, शायद 8 12 भी हो रहेगा, सकता है, 8 भी हो सकता है, 11। तो दैट इज ओके, राइट? That और is वो okay. नो बट Purity- वो क्लियरली वेबसाइट पे मेंशन्ड होगा कि +- 2 ग्राम्स हो सकता है, हाँ, बिकॉज वो कंज्यूमर आप- फिर आके फाइट नहीं करना चाहिए ना कि नहीं, इनफैक्ट आप लोगों को, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैज आल्सो बीन इशूड. इट इज ऑन आवर वेबसाइट, BIS वेबसाइट, एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड देयर. इन QCO में वो नहीं है. ओके, ठीक है, उसको वो, अच्छा सॉरी, वो QCO में नहीं है, वो अलग से रेगुलेशन में है. बट यस, वो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. हम BIS में पूरी वेबसाइट पे क्लियरली उसको डाल दें. सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें सर बहुत सारा मैन्युफैक्चर का ये क्वेश्चन आया. अभी सर 20 ग्राम्स का नेकलेस है, आप बोलता है कि 2 ग्राम तक कम जास्ती होगा तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके. अगर कोई जानबूझ के उसका बैक चेन है 4 ग्राम है, उसको निकाल के 6 ग्राम का कोई हल्का प्यूरिटी का लगा दिया, वो फिर तो जब भी आप वेरीफाई करेगा 2 ग्राम का ही फर्क है. पर एक्चुअली क्या ये क्वालिटी में तो 18 कैरेट का बैक चेन है, 22 कैरेट का हॉलमार्किंग है. इसमें एक्चुअली क्या तकलीफ आया तो किसका जिम्मेदारी है, ऐसा करके बहुत सारा मैन्युफैक्चरर पूछता है सर. इसका थोड़ा आप लाइट डाला तो अच्छा है सर. अब इसका आंसर तो इट्स वेरी सी. प्रॉब्लम इज दैट रूल्स आर, आपको याद होगा, इन अर्लियर आल्सो आई क्लैरिफाइड दैट the rules cannot take care of all kinds of unforeseen situations. But yes, what we are saying is that 2 gram alteration up to 2 gram can be done, but maintaining the purity. Now question is, who has done the alteration? If manufacturer is doing the alteration, then manufacturer is responsible. If retailer is doing the alteration, he is responsible. So it's very clear, because ultimately the change in the weight will not be reflected at your level, but will be reflected at customer level, retailer level. इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. नहीं सर, एक्चुअली क्या ये लोग पूछने का मतलब ये है सर, एक्चुअली क्या ये कस्टमर का बेच दिया, कस्टमर को मालूम पड़ा एक्चुअली क्या इसका कलर डिफरेंट है, ये है, फिर क्वालिटी चेक किया तो बैक चेन 6 ग्राम का है, वो एक्चुअली क्या 18 कैरेट है, 22 कैरेट का नेकलेस है, हॉलमार्किंग किया 22 कैरेट करके. अभी वो रिटेलर के पास गया तो रिटेलर बोलेगा सर ये तो मेरा नहीं है सर, मैं मैन्युफैक्चरर से लिया, ये हॉलमार्किंग है, इसका मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैन्युफैक्चरर ही कुछ गलत किया होगा. पर एक्चुअली वास्तव में मैन्युफैक्चरर ने गलत नहीं किया, ये रिटेलर ने किया. ये कैसा मालूम करेगा, यही एक्चुअली क्या बहुत सारा लोग का दिमाग में है. इसलिए मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला ठीक है, मेरे को मौका मिला. हमारे साथ मिस्टर पसरीचा डीडी जी हैं, वो ही वुड लाइक टू कमेंट ऑन. can't hear him. सर आवाज, उसका आवाज Sir, नहीं we आ रहा. can't hear him. Pramod ji, we can't hear him. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो समस्या आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर ने तो ठीक ही दिया, बट वो रिटेलर के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो बाद में कस्टमर को पता चला, तो उसका तो अल्टरेशन से क्या लेना देना है. वो तो मान लें, इफ देयर इज अ मलिशियस, इफ देयर इज अ गलत आदमी है बिजनेस में, तो वो तो कभी भी किसी भी ज्वेलरी पीस के साथ कर सकता है. तो मैं केवल यही एश्योर कर सकता हूं कि अब वर्स्ट केस में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर से कहा जाएगा कि भाई आप एक्सप्लेन करें कि आपकी प्योरिटी क्यों खराब है. तो आप अपनी बात तो कहेंगे ना कि आई हैड गिवन दिस विद आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग एटसेट्रा टू रिटेलर. तो वो तो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है. बट अब ये तो आपको फिर सही रिटेलर चुनने होंगे मिस्टर श्रीनिवास. डोंट गिव इट टू रॉन्ग पीपल. Okay, ठीक है, we'll leave it at that. So, sir, if old unhallmarked jewelry is brought from a customer, okay, as you know, consumers come back, दुकान में आते हैं, वापस देते हैं. Can the same be hallmarked as is, or it would have to be melted and remade? Completely it's the retailer's choice. So, पुरानी ज्वेलरी वो हॉलमार्क कर सकता है. हाँ, पुरानी ज्वेलरी को भी हॉलमार्क करा लें या मेल्ट करा के करा लें, जैसे भी करा लें. Okay. हम लोगों ने केवल ये क्लैरिफाई किया कि हाउस होल्ड्स, घरों में जो ज्वेलरी है वो कहीं भी कभी भी किसी को भी बेची
जा सकती है बिना हॉलमार्क। Okay. How will hallmarking impact ancestral heritage jewelry lying with the jeweler and proposed to be sold by him, since determination of the carriage would be a difficult process? जो अपनी एंटीक ज्वेलरी है 100 साल पुरानी, 200 साल, ऐसे तो इंडिया में बहुत है जी, बहुत है। अब उसमें हमें एडवाइजरी कमेटी का ये भी एक इम्पोर्टेंट एजेंडा रहेगा। In Britain, after a long process of consultation, they decided कि जो 1950 के पहले ज्वेलरी मैन्युफैक्चर हुई है, and manufacturer or the owner can give a proof that jewelry was manufactured before 1950. मेरी आवाज कट होगी? Am I audible? या ओके। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि इंग्लैंड में उन्होंने ये नियम बनाया हेरिटेज ज्वेलरी का डेफिनेशन कि अगर वो 1950 के पहले बनी है और उसका प्रूफ ओनर या ज्वेलर दे पाए तो उसे हेरिटेज ज्वेलरी माना जाएगा और वो हॉलमार्किंग से एग्जेम्प्टेड रहेगी। अब हमें इंडियन कंटेक्स्ट में बैठ के ये सोचना होगा हाउ टू डिफाइन हेरिटेज ज्वेलरी, इसलिए कि जब तक हेरिटेज और डेफिनेशन नहीं होगा वी वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट। सो लेट्स होप इसको हम लोग एडवाइजरी कमेटी में एडवाइजरी कमेटी, हाँ, उसमें डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है सर। देन HUID कमिंग टू आई गेस आज का मेन मुद्दा वही है। So how can HUID tracking be implemented across the value chain, where hallmarking is being implemented only in certain districts and movement will happen of product from district to district, pan India, manufacturer किधर है, retailer किधर है, so ये कैसे होगा? नहीं, हमारा ये कहना है ना कि एक बार जो ज्वेलरी हॉलमार्क हो गई और उस पे 6 डिजिट कोड आ गया, तो अब तो हमारे पास वो बैकएंड में वो डेटा है कि वो ज्वेलरी किसने भेजी थी हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्क कराने के लिए, कितने तारीख को हुई, कब हुई, वो डेटा तो हमारे पास है, तो हम उसके थ्रू ट्रैक कर लेंगे उसे। हमें वैल्यू चेन में क्या ट्रांजैक्शन होता है उससे बहुत मतलब। So you are saying it's not a challenge? It's not a challenge, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और इनफैक्ट कभी हम फिर मिलेंगे तो आई विल शो यू द डैशबोर्ड व्हिच वी आर डेवलपिंग, इट कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एवरी। ठीक है, ओके सर। देन दूसरा एक मुद्दा था कि आज एक ही ज्वेलरी पीस में फॉर एग्जांपल इयरिंग है, तो इयरिंग बैक जो होता है वो अलग है और इयरिंग अलग है, ओके। सो दोनों पे अलग अलग HUID नंबर रहेंगे? अगर वो डिटैचेबल हैं तब तो उन पे अलग अलग होंगे, अगर वो एक ही पीस है तब एक ही नंबर होगा। हाँ, बट रिंग में या नेकलेस में अगर कहीं भी तो पेंडेंट या इयरिंग तो हमेशा दो ही रहेगी ना, इयरिंग में एक पुशपिन रहेगा और वो तो दो अलग अलग, हाँ, दोनों पे रहे। श्रीनिवासन, यू थिंक दैट इज प्रैक्टिकल, इयरिंग में दो HUID? एक्चुअली क्या सर, ऐसा हो रहा है, पर एक्चुअली क्या इसका मिसयूज भी कर सकता है कोई ने। एक्चुअली क्या है, ये पेज को अलग लगा निकाल के दूसरा स्टेड में लगा दिया, फिर ये एक्चुअली इसको दूसरा पेज लगा दिया, ऐसा थोड़ा मिस्टेक्स आने का चांसेस है। ये एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन लें। ओके, ठीक है, सो वी विल टेक इट अप इन एडवाइजरी कमेटी। ओके सर। देन HUID मैंडेटरी हो गया है 1 जुलाई से, बट सिस्टम पूरा ग्लिच फ्री है कि बहुत सारा मैनुअल इंटरवेंशन रहेगा? सी हमारा क्या एक बहुत सारे रिटेलर्स का एक क्वेश्चन है कि उनके हजारों आइटम रहते हैं और अगर हर एक आइटम को मैन्युअली एंटर करना पड़े ऐसे हॉलमार्क सेंटर में, तो उनकी जो ज्वेलरी वहाँ ही रहेगी एक वीक के लिए। सो जैसे GST पोर्टल में फॉर एग्जांपल अपनी जितनी इनवॉइसेस है वी कैन अपलोड एंड रिटर्न्स, एक्चुअली अभी तो सीमलेस एक दिन में ही हो जाता है, तो वैसे यहाँ भी ऐसे सेंटर्स के साथ एक कोई सुविधा रहेगी जहाँ पे मैन्युफैक्चरर के रिटेलर अपने सारे पीस बल्क अपलोड कर सकता है और वो आपके पोर्टल में आ जाएगा? जहां तक ज्वेलर्स की बात है, उनको तो बिल्कुल ही पीस वाइज एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिंपली लिखेंगे ईयर रिंग ये प्योरिटी है 50 पीस में भेज रहा हूँ। उनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है देखिए, अगर 1000 पीस भी आती है तो XRF तो सबका करना ही पड़ता है। वो चाहे जब ये सिस्टम नहीं था ऑटोमेटेड तब भी वो मैनुअली करते थे, मैनुअली करके और एक रजिस्टर पे XRF की एंट्री लिखते थे। फर्क बहुत सारे हमारे सेंटर्स ऐसे हैं जो थोड़े मॉडर्न हैं, जिनके पास नए इक्विपमेंट्स हैं,
वहां तो XRF की रीडिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, तो वहां तो कोई और, बल्कि काफी समय बचेगा। कहीं कहीं अभी भी वो जो पुराने यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर में लिखने के बजाय कंप्यूटर में लिखेंगे, तो इसलिए कि ये काम तो पहले के ही करते ही थे, हर पीस को XRF में एक्सरे तो करना ही करना है, तो उसमें कोई भी नया काम नहीं जुड़ रहा है उनका। केवल एक जो चेंज का ये होता है कि द एंट्रीज हैव टू बी मेड इन कंप्यूटर, तो इसीलिए हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ ASC सेंटर्स, और वो 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा पूरे कंट्री में। और यही नहीं, आपको हम लोगों ने ये जस्ट टू एश्योर द ज्वेलर्स कि उनको कठिनाई नहीं होगी और ये बड़ी ठीक से चलेगा सिस्टम। हर वीक, एवरी वीक, 1 BIS ऑफिसर विल गो टू एन ASC सेंटर। वो हम लोगों ने पूरा शेड्यूल बनाया है, वहां बैठेगा, देखेगा, उसके पूरे प्रोसेस को स्टडी करेगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। और डे टू डे बेसिस पर वी हैव क्रिएटेड CDAC में यहाँ पे हम लोगों ने एक टीम बनाई है, जहां भी कोई भी खबर आएगी कि यहाँ कोई ग्लिच हुआ, यहाँ कोई कठिनाई हुई, वो सॉल्व करेंगे। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इट विल वर्क सेटिस्फैक्टरली। और so आप चैलेंज नहीं देख रहे हो, मैनुअल एंट्री नहीं रहेगा, सीमलेस रहेगा? नहीं, मैनुअल एंट्री इज रिप्लेस्ड बाय। और आपको मैं एक अच्छी खबर ये फिर शेयर करूं कि अभी भी ये मैंडेटरी नहीं है, 1 तारीख से ही होगा, बट बहुत सारे ज्वेलर्स ने ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिया है। और मेरी सूचना के अनुसार 1000 से ज्यादा तो हो गए होंगे। तो बहुत सारी ज्वेलरी ये नए तरीके से following the automated system is already being hallmarked. Okay. Now this is another clarifying question. Sorry, Srinivasan कुछ बोल रहे थे? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या सर, एक्चुअली क्या ये लोग क्या तकलीफ बोलता है, आप जो बोल रहे हैं सर 100% राइट है। ज्वेलर जब भी हॉल मार्किंग के लिए देगा वो इतना पीस से करके लिख के दीजिए तो काफी है, बाद में ये पूरा डिटेल एक्चुअली हॉल मार्किंग सेंटर फीड करेगा, वो राइट बात है। बाद में अगर होलसेलर के पास जाता है, एक होलसेलर रिटेलर को सेल करने के टाइम पे एक्चुअली क्या पोर्टल में एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या ज्वेलरी को भी एक वो हम नहीं लागू कर रहे हैं ना मिस्टर श्रीनिवास, दैट वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग राइट नाउ। सर होलसेलर, सर रिटेल, होलसेलर टू रिटेलर आप लागू नहीं करते हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं ना, वो बताया ना मैंने पहले ही, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। वी आर नॉट। Okay, sir. Okay. So then one clarifying this thing is that do jewelers need to re-hallmark with HUID the existing hallmark jewelry की जरूरत नहीं है? ये No, शायद बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। ओके, फिर दूसरा एक था कि फोटोग्राफ नहीं रहेगा हॉलमार्क ज्वेलरी का, तो बाद में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? नहीं, अभी बहुत तो सारे ज्वेलर्स का एक डिमांड था कि फोटोग्राफ होना चाहिए ना आईडी के लिए। नहीं, वो तो दिस फोटोग्राफ इशू और वेट इशू तब आएगा जब हम ज्वेलर के लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज वो तो फोटोग्राफ मोबाइल ऐप में होना चाहिए था और हमारे सिस्टम में, तो अभी दे नीड नॉट वरी। द डे वी डिसाइड कि वो हम लोग ज्वेलर के लेवल पे भी HUID इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ये सारे इश्यूज आएंगे। ओके, तो अभी फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। और अगर इफ ज्वेलर्स डिमांड की फोटोग्राफ रहना चाहिए तो हम लगा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Srinivasan, you have any viewpoint on photograph? ये राइट है सर, ये राइट है सर, जो बोलता है सही है। अभी एक्चुअली क्या पार्शियली किया है, इसलिए ये जरूरत नहीं है। अभी रिटेलर ने जितना ऑब्जेक्शन बोला वो ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने के टाइम पे, जब भी लागू करने का टाइम पे ये फोटोग्राफ्स वेट सब कुछ आएगा। Okay, फिर as a business practice sir, 10-20% of stocks every year are back in the showroom जो non moving inventory है, और उसको मेल्ट करते हैं, बराबर है, और नया ज्वेलरी बनाते हैं। सो ये जो एक्टिव HUID नंबर है ये ज्वेलरी का, उसका क्या होगा? वो दैट विल बी, वो मैं वही कह रहा था कि जो अनसोल्ड ज्वेलरी है जिसको मेल्ट करते हैं, दैट प्रोविजन वी हैव मेड, वो हम जब भी इसको लागू करना होगा हम दिखा देंगे, वो HUID डिसेबल हो जाएगी। अच्छा, डिसेबल हो जाएगी। हाँ, जैसे ही वो ज्वेलर को ही हम ऑप्शन दे देंगे कि आप जिसको भी मेल्ट कर रहे हैं ज्वेलरी which won't be in existence, उसको हम HUID डिसेबल हो जाएगी। Okay, so now coming to the last and we are doing okay on time, we're at 5 o'clock, so I'm coming to my last few questions जो legal aspects है सारे, और जिससे थोड़ा डर आ गया है इंडस्ट्री में। Okay, तो ये है कि it has been clarified that no penalty shall be levied on jewelers till August 21. However, ये जो corresponding amendment है, they haven't been notified. नहीं, ये they won't be। मैं एक चीज for everybody's information, ये जो बात माननीय मंत्री जी ने कही
कि हम 2 महीनों तक, अगस्त तक, किसी तरह की कोई पेनल्टी या कोई भी पेनल एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, वो उसको स्पिरिट में लेना है, बिकॉज एक्ट का प्रोविजन तो अमेंड नहीं हुआ है। अगर मान लें आज के भी डेट में कोई कंप्लेंट मिलती है कि कोई ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर या सेंटर कोई बहुत सीरियस माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। इसलिए एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अपनी जगह पे हैं, उनको किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बदला जा सकता। Okay. जो मंत्री जी ने कहा कि 2 महीने तक BIS केवल ज्वेलर्स की मदद करेगा, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपकी ट्रेनिंग कैसे हो, अगर आपसे कुछ गलतियां होती भी हैं तो विल सिट विथ यू, आपका वो मिस्टेक्स को करेक्ट कराएंगे, नो पेनल एक्शन विल बी टेकन। Okay, no penal action will be taken. हाँ, सो दिस इज द स्पिरिट। एक्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता, वो तो अपनी जगह पे है। Is there a time frame till the manufacturer seller would remain liable for the quality of the jewelry from the date of sale to the customer? कि एक बार बेचा फिर कितने, ये एक्सपायरी डेट जैसा कुछ है कि ये फॉरएवर है? ये फॉरएवर है, दिस इज नॉट देयर। ये फॉरएवर है? दिस इज फॉरएवर। सर इसमें एक्चुअली क्या सर, आप जो बोलता है सर सही है। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है सर, अभी कस्टमर को अपन बेच दिया, अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद एक्चुअली कुछ टूट जाता है, किसी कस्टमर किसी किधर कारीगर के पास गया, कुछ रिपेयरिंग कर दिया, उसमें वजन कुछ कम हुआ जास्ती हुआ, फिर एक्चुअली क्या ये ज्वेलरी को लेके आके ज्वेलर के पास बोलेगा कि ये एक्चुअली क्या आपका प्योरिटी कम है, ये एक्चुअली क्या अननेसेसरी प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये लोग पूछता है कि कुछ लिमिट है कि 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा करके, ये क्या अनलिमिट कर दिया ना सर, ऐसा बीच बीच में कुछ रिपेयरिंग ये वो करके, पॉलिशिंग ये वो करके कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये जिम्मेदारी बहुत जास्ती होता है, ये अननेसेसरी है। ऐसा No, what I can say is that I'm requesting Mr. Agrawal to take note of it, so that in advisory committee we will include this also in the agenda. Okay, sir. Because right now I do not have a solution. Right now understanding is it is forever, but जो आप कह रहे हैं there are हाँ, because कुछ तो डेट टाइम there is merit in it, we can. ओके, देन दूसरा ये जो 2 ग्राम प्लस माइनस वाली बात हुई, वो वापस नोटिफाई नहीं हुआ है, तो वो बोल रहे हो आप वो हो जाएगा? अब वो जल्दी हो जाएगा। ओके, फिर ये जो आप बोल रहे हो रजिस्ट्रेशन जो अभी रिटेलर कर रहे हैं उनको कोई फी नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं। बट जिसने फी दिया है उसको कुछ रिफंड मिलेगा? नहीं, उनको तो वेल्थ टैक्स सब लगने वाला है उनके ऊपर। Why should they? Why should we refund? मेरे को लगा आप आज सब इतनी अच्छी खबर दे रहे हो तो एक ये भी दे दो। सर एक्चुअली क्या सर, no, they will not refund. There will be no refund. नो रिफंड। ये लोग पूछने का मतलब ये है सर, 16 से अपन मैंडेटरी कर दिया, अपन जब भी मिनिस्टर का मीटिंग हुआ 15 तभी हम बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। कोई लोग सर 17, 16, 17, 18 किया, तब टाइम में अपन एक्चुअली एक्टिवेट नहीं किया ये फ्री रजिस्ट्रेशन का। ये लोग एक्चुअली क्या जल्दी करने में तो कर दिया, एक वो कोई सेल का जरूरत है ये वो करके 17th 18th ऐसा कर दिया। अभी वो लोग ही पूछता है सर एक्चुअली क्या आपने फ्री करके बोला, या हम लोग फ्री नहीं हुआ, हम लोग पेमेंट कर दिया, या हमको वापस मिलेगा कि यही है सर 16 का पहले जो भी है उसको वो लोग नहीं मिस्टर श्रीनिवास वापस नहीं मिलेगा, बट वी थैंक देम a lot for helping BIS. So Tiwari, coming to last question for today, तो ये जो penal provision थोड़ा एक्सप्लेन कर लोगे कि क्या penal provision रहेगा? Penal provisions एक्ट में 3 है। एक तो the right person, I'll request Mr. Agrawal. Yeah. Penal provision, please explain. Yeah. थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा उनको। आप इधर आ जाएंगे क्या? Why don't you come here? वो चेयर इधर पुल कर लीजिए। या अच्छा थोड़ा सा तो पिलर प्रोविजंस की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें सेक्शन 29 जो हमारा BIS एक्ट का है
और इसमें एक क्लैरिफिकेशन मेरा है, जो पहले भी दूसरी मीटिंग में भी मैं बताता रहा हूँ, ये पिनल प्रोविजंस हमारे खाली ज्वेलर्स के लिए नहीं है। ये जो बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी दूसरी सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड है, चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी यही पिनल प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 29 है BIS एक्ट का, उसके हिसाब से any person who contravenes the provisions of subsection 6 or 8 of section 14 or section 15, section 14 हमारा प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन से डील करता है, section 15 हमारा डील करेगा इस हॉलमार्किंग से, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine which shall not be less than 1 lakh rupees but may extend up to 5 times the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold or affixed or applied with a standard mark, including hallmark or with both. So these are the penal provisions under BIS Act section 29, and these provisions can be implemented only through a court of law. It is not that BIS at its own can impose penalties of imprisonment or fine for contravention of section 14 or 15 or 14 or 15 of BIS Act. These have for implementation of these provisions, for holding someone responsible for contravention, this is order has to be passed by a court of law. So ultimately, the case will go to the court, and then based on the decision of the court, this action will be taken under section 29 of BIS Act. What we will do in our advisory committee meeting, we will have a PowerPoint presentation on provisions. लेकिन जस्ट टू रियश्योर ज्वेलर्स, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्प्रिजनमेंट या इस तरह की हेवी पेनाल्टी की बात है, पहली बात तो कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसी से हो सकती है, ऐसा नहीं कि BIS आर्बिट्ररीली कुछ इम्पोज करेगा। सेकेंड, ये मिसयूज ऑफ हॉलमार्किंग पे अप्लाई होती है। जैसे कोई ऐसा सेंटर वाला है, ASC से ऐसा कोई आदमी है जो बिना किसी रिकॉग्निशन के हॉलमार्किंग कर रहा हो, उसके अगेंस्ट में दीज प्रोविजंस विल बी इन्वोक्ड। या फिर कोई बहुत लार्ज स्केल या कोई दूसरा भी सेंटर के अलावा कोई ज्वेलर भी अगर अनऑथराइज्ड वे में कोई हॉलमार्किंग कर रहा हो, तो ये उन एक्सट्रीम केसेस के लिए ठीक है। जो प्योरिटी में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई माइनर डिफरेंस होता है तो हम एडवाइजरी इशू करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा 4 कैरेट तक का फर्क हो गया, 40 PPT जिसको 40 PPT, उसका फर्क हो गया, तो हम एक नोटिस इशू करते हैं आपको। अब एडवाइजरी कमेटी में आप जब बैठें तो उसको भी सोच लें कि उसको हम लोग इस फेवर में है कि उनको एक और चांस दिया जाए कि आप ठीक कर लें। और अधिक से अधिक जो पनिशमेंट जो ज्वेलर को होता है इन केसेस में, वो पनिशमेंट नहीं है, वो इनकी ड्यूटी है कि जो भी प्योरिटी का गैप है आप वो कंपनसेट कर दें कस्टमर को। तो इसको लेके बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो जानबूझ करके। नहीं, पॉइंट आपका बराबर है। सो इंटेंशन ऑफ BIS इज नॉट टू आई गेस गो द एक्सट्रीम वे। पॉइंट इज के चलो हॉलमार्किंग करते हैं, देश में ये स्प्रेड करते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और सिस्टम जरा ठीक करते हैं। एक लास्ट एक सवाल एक ऑडियंस से आया है। सो सर, आर यू विद मी? प्लीज गो। एक सवाल है कि बहुत सारा जो डोमेस्टिक में बिजनेस होता है, इसके आज होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, मुंबई, साउथ, कैलकाटा, तो वो रिटेलर को माल मेमो पे भेजता है। तो अगर 100 पीस भेजे, फिर वो 100 में से 20-30 रिटेलर रखता है, 60-70 वापस भेजता है। फिर अभी जो 20-30 रख रहा है, वो रिटेलर खुद हॉलमार्किंग कराएगा उसके शहर में कि वो सारे पीस उसको मैन्युफैक्चरर को वापस भेजने हैं हॉलमार्किंग करने के लिए? हमने ये बात जब हमारी बात हो रही थी तभी क्लैरिफाई किया था कि हॉलमार्क कौन कराएगा, ये डिसीजन पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर
होलसेलर और रिटेलर के बीच है। जैसे मैं मान लें कि मैं रिटेलर हूँ और मैं मैन्युफैक्चरर को कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए ये पीसेस बना दीजिए, मैं हॉलमार्क करा लूंगा, तो ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। इट्स अ क्वेश्चन हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिल्कुल इट इज बिटवीन So it is मैन्युफैक्चरर, between the manufacturer, wholesaler, Yeah. retailer. They Yeah. decide. फिर जिसने They कराया उसकी जवाबदारी रहेगी। उसका ये उसकी जवाबदेही बनी। तो एक फॉलो अप सवाल है, तो इसमें हॉल मार्किंग सेंटर की क्या जवाबदारी है? ये सारे इक्वेशन उनकी पूरी जवाबदेही है। जैसे ही कोई भी प्योरिटी में लैप्स होगा, कुछ भी होगा, तो नोटिस विल इसेंशियली गो टू हॉल मार्किंग सेंटर। मैन्युफैक्चरर को या जिन्होंने हॉलमार्क कराया उनके पास तो जाएगा ही, उनकी हॉलमार्किंग सेंटर को इसेंशियली वो नोटिस जाएगी और दे विल हैव टू प्रूव कि उनके लेवल पे गलती नहीं हुई है, तो उनकी पूरी जवाबदेही है। Okay. So on that note, sir, thank you very much on behalf of GJPC and all our members. Thank you for your valuable time, being so honest, frank, और हमको हमारे सारे जवाब देने के लिए. I'm sure we are with you in this whole journey. Thank you, Srinivasan. I hope are there any other clarifications, questions? Everything. कॉलिन भाई, एक्चुअली क्या 76 क्वेश्चन आया हुआ है, उसको एक्चुअली क्या अपन थोड़ा उसको स्टडी करेंगे, उसका जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है अपन बीएएस को भेज के उसको जवाब ले लेंगे। श्योर ओके। सो थैंक यू सर थोड़ा वेरी कष्ट मच देगा सर। अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू डीजे।